Assalamu alaikum students. Welcome to our online lesson that is on nutrition in plants. Today our topic of discussion will be heterotrophic nutrition, and along with the introduction to heterotrophic nutrition we will study about parasitic plants. So let's start our today's session without wasting any time. The learning outcomes for today's session will be: what is the heterotrophic mode of nutrition, what are different types of heterotrophic nutrition, and how the heterotrophic nutrition take place in parasitic plants. Introduction to heterotrophic nutrition. We have studied in lesson number 1 that heterotrophic nutrition or the heterotrophs are the organisms that cannot make their own food and get their food from other organisms. If heterotrophs are organisms that cannot make their own food and they get their food from the other organisms, so heterotrophic nutrition will be the nutrition in which organisms are not preparing their food. Now let's watch the video on heterotrophic nutrition to have clarity about this concept. Friends, now let us know about those plants which do not have chlorophyll and cannot synthesize their food on their own. Just think about how do they survive and from where do they derive nutrients. As we have already learnt in this module that these plants derive food from other plants and animals, and this type of mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. The plants in which this kind of mode of nutrition is found are known as heterotrophs. There are 4 types of heterotrophic plants: parasitic plants, saprophytic plants, symbiotic plants, insectivorous plants. Now let's learn them one by one. Okay, we have watched the video regarding heterotrophic nutrition. इसमें हमने क्या देखा है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. हेटेरोट्रॉफिक वर्ड को ब्रेक करते हैं. हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन फूड. इट मीन्स दैट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट एनिमल से, डिफरेंट प्लांट से, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं. तो आपने हेटेरो से इसको याद रखना है. Organisms that get their food, obtain their food from other organisms are called heterotrophs, and the mode of obtaining food from other organism is called heterotrophic nutrition. We are specifically talking about the nutrition in plants. हम plants की बात कर रहे हैं. We have read in lesson number 1 and lesson number 2 that the plants can prepare their own food through process of photosynthesis, and plants are autotrophs. So why we are saying the plants have heterotrophic mode of nutrition? Plants heterotrophs कैसे हो सकते हैं? Plants इसलिए photosynthesis करते हैं because they have a green pigment called chlorophyll present in their leaves. अगर वो ग्रीन पिगमेंट उनके अंदर नहीं होगा, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल एब्सेंट है. क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता. जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो प्लांट्स डेफिनेटली कोई और वे यूज करेंगे अपनी फूड को लेने के लिए. आपको याद होगा कि वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर लेसन नंबर 1 and 2 कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. All plants are not autotrophs, only green plants are autotrophs. तो जो other than green plants हैं, यानी कि non green plants हैं, वो autotrophs नहीं होते हमेशा. So the heterotrophic plants, they lack chlorophyll to make food, so that the heterotrophic plants,
they depend on other green plants for their food. हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट्स हैं वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. अब हमने देखा कि जो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसकी 4 टाइप्स हैं. उसकी आज हमने टाइप नंबर 1 पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम एक नई टर्म के बारे में आज सीखेंगे, दैट इज parasites. We have although read this term in previous class. So can anyone tell me what are parasites? Can anyone tell me? Okay, parasites are the organisms जो दूसरों की बॉडी के ऊपर या दूसरों की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेना होता है. तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो अटैच हो जाते हैं और वहां से अपना फूड लेते रहते हैं. They get their food and shelter on or from other organism. Most common example जो आपको इस पिक्चर में भी दिखाई जा रही है, that is mosquito. मॉस्किटो कहाँ रहता है? मॉस्किटो आपने अपने घरों में देखा होगा. मॉस्किटो करता क्या है? मॉस्किटो का जो सोर्स ऑफ फूड है दैट इज ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करता है मॉस्किटो और अपनी न्यूट्रिशन, अपना फूड, अपनी एनर्जी लेता है ह्यूमन बींग से. अब पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले. जब वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, एक तो फूड ले रहा होता है प्लस वो शेल्टर लेता है, पनाह लेता है, स्पेस लेता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को इससे नुकसान हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, उनका ब्लड सक कर रहे हैं, हमारा ब्लड सक हो रहा है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा दैट इज हार्मफुल फॉर अस. लेकिन मॉस्किटो की फूड की जो नीड है वो इससे पूरी हो रही है. सो अब हम देखते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है. पैरासाइट क्या होता है वो आपको पता चल गया है. पैरासिटिक न्यूट्रिशन जाहिर है ऐसी न्यूट्रिशन होगी जिसमें पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स जो न्यूट्रिशन जिस तरह से लेते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इससे पहले आप लोग अपने पेन और अपनी नोटबुक्स रेडी रखें एंड प्लीज नोट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल वाचिंग द वीडियो. प्लीज keep noting points. Now do watch this video. Some plants, like the cascuta, snatch food from other plants by climbing on them. The plants on which they climb are called hosts. Since they deprive the host plant of valuable nutrients, the plant itself is called parasitic. In doing so, they often harm the host plant. Okay, we have watched the video what happens in parasitic nutrition. In parasitic nutrition, parasite attacks on other organism and that other organism is called host. Parasitic plants are the plants that lack chlorophyll. Definitely they don't have chlorophyll, that's why they are parasitic. अगर chlorophyll होता तो वो autotrophic होते. तो अगर क्लोरोफिल में एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. और हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट टाइप हमारे पास है पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट का बना बनाया फूड लेते हैं. जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया होता है अपने लिए, वो प्लांट का फूड ये ले लेते हैं. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. बिल्कुल ठीक है. पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी मॉस्किटो की, मॉस्किटो वो पैरासाइट था जो ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर रहा था. अब हम पैरासिटिक प्लांट की बात करें. पैरासिटिक प्लांट दूसरे प्लांट पे अटैक करता है. जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है उसे हम कहते हैं होस्ट प्लांट. Parasitic plants suck the sap of the host using special roots called storia. Sap of the host का मतलब है जो host का food है. Parasitic plant host के food को suck कर लेते हैं through special roots. एक उसके अंदर स्पेशल किस्म की रूट्स है जिनका सिर्फ ये काम है कि उन रूट्स ने होस्ट के अंदर एंटर होना है और वहां पे उनके फूड को एब्जॉर्ब करना है, सक करना है. एग्जाम्पल आपके पास है
कस्क्यूटा। कस्क्यूटा की एग्जांपल अभी वीडियो में भी हमने देखी है और ये आपके साथ यहाँ पिक्चर भी दिखाई जा रही है। कस्क्यूटा का प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइम करता है और वहां से अपना फूड लेता है। अब आप लोग एक दफ़ा मैं अगेन आपके लिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन की वीडियो प्ले कर रही है, उसको आप दोबारा से देखें कि यही सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आई एम री रनिंग द वीडियो, अगेन वॉच इट। Some plants, like the cascuta, snatch food from other plants by climbing on them. The plants on which they climb are called hosts. Since they deprive the host plant of valuable nutrients, the plant itself is called parasitic. In doing so, they often harm the host plant. ओके, सो यही सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अभी कस्क्यूटा का प्लांट आपको वीडियो में दिखाया भी क्या है। ओके, सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक? व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड हेट्रोट्रॉफिक? What is meant by the word heterotrophic? Heterotrophic nutrition क्या होती है? The nutrition in which organism cannot make their own food. Or parasitic nutrition, this is one of the type of heterotrophic nutrition. So parasitic nutrition is the mode of heterotrophic nutrition in which the plant, वो plant जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, lives in बॉडी के अंदर और इनसाइड द बॉडी, यानी कि लिव्स ऑन बॉडी, सॉरी ये ऑन है, लिव्स ऑन बॉडी या तो बॉडी के ऊपर रहता है जैसे कि मॉस्किटो, या फिर लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। ओके, नाउ वी हैव रेड अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और अब हमने देखना ये है कि थोड़ी सी क्विक रिकैप करते हैं जो कुछ हमने अभी पढ़ा है। एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी में मुझे सारे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। ये होल क्लास एक्टिविटी होगी, इसमें आप लोग बता सकते हैं अपने आंसर्स। वन बाय वन मैं पूछती जाऊंगी सबसे। जी, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, जी आप लोग बताएं कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स या हेट्रोट्रॉफ? अदर से लेता है, हेट्रो मीन डिफरेंट और ऑटो मीन सेल्फ। क्या आंसर होगा इसका? यस, दैट आर हेट्रोट्रॉफ्स। The plants that get their food from another green plant known as host or prey. होस्ट क्या होता है? जी, प्लांट अपने दूसरे ग्रीन प्लांट से जो फूड लेते हैं, तो उस ग्रीन प्लांट को जिससे फूड ले रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट या प्रे? जी आप लोग बताएं। यस, दैट इज होस्ट। होस्ट कहते हैं मेजबान को, तो डेफिनेटली जिस प्लांट से फूड लिया जा रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट। द प्लांट्स दैट गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बियोटिक या पैरासिटिक। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर होस्ट थ्रू स्पेशल रूट्स कॉल्ड, स्पेशल रूट्स जिनसे वो फूड ले रहे हैं इसे क्या कहते हैं? आप लोग बताएं जी स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज स्टोरिया। स्टोरिया वो रूट्स हैं जो कि होस्ट के अंदर एंटर कर दी जाती हैं और जिससे फूड लिया जाता है। सो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों ने एक जनरल व्यू ले लिया है कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखते हैं कि कस्क्यूटा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कस्क्यूटा ये देखेंगे हम कि ये होस्ट के ऊपर कैसे अटैक करता है।
जी, लेट्स वॉच द वीडियो. देखिए आप लोग कैसे कस्क्यूटा जो है वो प्लांट में इंक्लाइन कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है. ओके, सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कस्क्यूटा प्लांट को हम डोडर भी कहते हैं. तो वीडियो में आपको डोडर का नेम शो हो रहा था. कस्क्यूटा प्लांट इज आल्सो कॉल्ड डोडर. इसमें आपने देखा कि कस्क्यूटा प्लांट कैसे अपने प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल बना के उस पर अटैक कर रहा है. इसके अलावा आपने इसमें हिस्टोरिया भी देखी है. हिस्टोरिया आप देखिए, वो मैंने बताया था आपको रूट्स हैं, व्हाइट कलर की आपको बड़ी बड़ी से धागे नजर आ रहे होंगे. मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि वो हिस्टोरिया जो है वो कहाँ पर है. जी, ये आप लोग देखिए यहाँ से. जी, ये मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिया जो है स्पेशल रूट्स हैं जो प्लांट अपने होस्ट के अंदर एंटर करके वहां से फूड कलेक्ट करता है. So this is your home assignment. We have been done with our today's topic, that was about heterotrophic nutrition. We discussed about heterotrophic nutrition, then we discussed about parasitic plants, और उस पे हमने कस्क्यूटा की एग्जाम्पल पर्टिकुलरली की है. असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक पर लिखने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज पैरासिटिक प्लांट गेट देयर फूड. पैरासिटिक प्लांट अपना फूड कैसे लेता है, ये आपने आंसर बताना है. विच स्पेशल ऑर्गन इज यूज्ड टू गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. कौन सा स्पेशल ऑर्गन पैरासिटिक प्लांट में है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है. अभी मैंने आपको बताया है वीडियो को स्टॉप करके, यहाँ पे आपको हिंट मिल गई है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट. अभी हमने एक पैरासिटिक प्लांट को वीडियो में देखा है, ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोरिया. हिस्टोरिया क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि स्पेशल रूट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये भी आपको पता चल गया है. सारे क्वेश्चंस अभी हमने इस वीडियो के अंदर एड्रेस कर लिए हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आप राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक्स पे, और साथ आपने क्या करना है कि अपने बुक से आपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ना है, और साथ आप पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स को. तो heterotrophic nutrition is given on page number 4. Then on page number 5 parasitic nutrition is given. और parasitic nutrition में हमने particularly बात की है कस्क्यूटा की. हमने इसकी एक एग्जांपल की है कस्क्यूटा, तो आपने सिर्फ उस एग्जांपल को करना है कस्क्यूटा को. So that was all about today's lesson. और आप आई होप कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज फील फ्री टू आस्क. Thank you so much, and it's time to say Allah Hafiz.